फर्स्ट हो गया? Yes, sir. No, sir. Sir, in first only two values are possible, right? टू वैल्यूज मतलब टू इक्वेशंस? Sir, I mean only two distinct values are possible for C, right? X comma Y that. नो. So since it's a right angle triangle, सो A and B are this things are fixed and C is variable. And the angle ACB is equal to 90. So only two values are possible. why two values are possible? You're not giving me a reason. You're just telling me two values are possible. You're not telling me why, when, how. You're not giving me an explanation why two are possible. So roughly I did draw point A and point B. Then the angle AC B should be 90. So only like two sides are coming to be possible. So Why two sides? You're not giving me the why. Just saying two sides. You're not giving me a reason. How are two sides coming? You've not told me yet. Many people got the first one. So see, ये देखो. So सबसे पहले तो देखो. B is 1, 1. B is 2, 3. C is 90 degree, right? Now, point of interest को h comma k लेंगे. Okay. Now, since it's a right angle triangle, what we can use? So can we use Property of a semicircle. Can you use anything related to straight line? Pythagoras. I use Sure, we'll like slope will be -1 of both. Yes, sir. sides. Yes, Now sir. you have two options here. Option one is you can use Pythagoras. Option two is you can use product of slopes. AC into BC is -1. समझ रहे हो? Now I'm going to use this, but you can use this also. So what is AC ka slope? And what is BC ka slope? It is this, right? H minus 3 K minus 1. Is equal to -1, correct? So we can sort of simplify this. Cross multiply this over here. You can get it over here. H square plus K square minus, I think many people got this answer. Plus 5 is 0. Yeah, सबको? Most of you got this answer. जिन्होंने chat पे लिखा है. Yes, sir. Of course, question में तो answer ये देंगे. X और Y से replace करना पड़ेगा. ठीक है? This is in fact equation of the circle, which AB diameter. Many of you interpreted, okay, the locus of C will be lying on a circle with AB diameter. बराबर? yes, sir, I did it that way. I found the midpoint of A and B, and I know the C will be equidistant, which will be equal to the radius. So फिर उससे we can find. That will, yeah. That will be the geometry. और इसमें 2 पॉइंट नहीं है. इसमें सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? Infinite points, sir. 2 पॉइंट नहीं है.
someone said 2 point ये है 2 point ये आ रहे हैं. I don't understand that. ठीक है. Sir, हाँ. sir, why did we do the sum by ortho center? Where is ortho center? I don't understand. What's the formula, sir? So I use product of slope is -1. Yes, sir. For if lines are perpendicular. इसमें ortho center कहाँ से आ गया? In ortho center, we used to do like that only, na? So I thought, sir. तुमको पता होना चाहिए ना. This is for perpendicular lines. This is not only for applicable for ortho center. Yes, sir. ठीक है. सर 1 मिनट लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना. हाँ, एक मिनट. Let people copy this first and then I'll show you. I have sent you 2 sets of homework. Have you people done it? Attempted it? यस सर. सर लास्ट वाला थोड़ा बाकी है मेरा. Because we need to have a doubt class of that. Okay, now you can. ये हो गया ना सबका कॉपी करके? Do the second one. Sir, doing. Couldn't show the last slide. You can take a screenshot of the questions. जिसने questions copy नहीं किए. Quickly. यस सर गॉट इट. सर इस हम लोग को सी मिला नहीं है ना, मतलब इक्वेशन ही मिला है. C निकाल ही नहीं पाओगे तुम. C वेरिएबल पॉइंट है ना. C फिक्स पॉइंट थोड़ी है. तो C निकालने का मतलब ही नहीं है ना. यस सर. ये वेरिएबल पॉइंट है जो सर्कल पे लाई कर रहा है. वो कहीं भी हो सकता है सर्कल पे. वो फिक्स नहीं है. वो फिक्स नहीं है तो कैसे निकालोगे? यस सर. सर्कल पे मूविंग है ना. यस. मतलब सर वो बिलो बिलो भी हो सकते ना, बिलो हाँ, लाइन. बिलो भी होएगा. बिलो भी. ओके सर. सर आप वो सर्कल वाला डायग्राम एक बार दिखा सकते हो क्या? ये हो गया सबका कॉपी करके? सर एक मिनट. ये हो गया सबका कॉपी करके बाकियों का? ओके. देखो ये सब डायग्राम. you do I actually require the diagram नहीं सर of मुझे the बस circle to actually get the answer? आंसर लाने के लिए मुझे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है. That is just the. हेल्प नो. हाँ. सर ये थोड़ा हेल्प कर देगा ना. It doesn't help. No. See, if you have applied if you applied this, then it's okay. Like you should still manage. See, you should be so familiar with these methods that तुमको click होना चाहिए.
ठीक है। So, सर एक बार थर्ड क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ, थैंक्स सर, थैंक यू। सर फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि मैंने रेडियस का डिस्टेंस निकाल दिया और फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कर दिया, तो मेरे वो को क्यों ये किया? एक्स और वाई के टर्म्स एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट नहीं हुए, वो रॉन्ग आंसर है। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि वो लोकस है ही नहीं। तो लेकिन एक्स पहले स्क्वायर तो प्लस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ही तो है। बट कौन सा सर्कल? सर्कल मतलब दुनिया में बहुत सारे सर्कल होते हैं। सर ए इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो सर्कल का जो मैंने क्लास में डिराइव किया था, उसका यस। सेंटर क्या था? अच्छा हाँ, ओरिजिन था। हाँ, तो इसका है। अच्छा हाँ, ओके सर। सर हाँ, सर एक डाउट है। हाँ, बोलो। सर आपने सर इसको अप्रोच स्लोप से किया ना सर, मैंने वो सेंटर ऑफ सर्कल से किया तो सेम आंसर आएगा। सर, बट मेरा वो शॉर्ट मतलब ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं आया मेरा आंसर। नहीं तो उसको स्क्वायर करके ओपन करोगे तो आएगा। सर दोनों वैलिड है ना? क्या तुमने किससे किया? उससे किया ना, पाइथागोरस से। किससे किया तुमने? नहीं सर, पहले मैंने ए बी का मिड पॉइंट निकाला और बाद में वो तो सरकम सेंटर होगा, तो बाद में एक्स माइनस ऑफ नहीं तो वो। तुमने ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा। ओके सर, बट वैसे भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, ओके सर। थर्ड वाला अभी करो। सर हमने सेकंड वाला सॉल्व नहीं किया ना अभी तक। क्या बोला मैंने? सॉरी, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो। हाँ सर। सर सेकंड वाले में दो आंसर है ना? हाँ, दो आंसर।
अच्छा ये देखो, सेकंड वाला कैसे करना है, सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। करेक्ट। सो A1, 1 है, B2, 3 है, CH, K ले लो, इसका लोकस निकालना है, इसको के लेंगे। एरिया 5 दिया, एरिया का फॉर्मूला दिया था ना मैंने, x1 y1 x2 y2 x3 थर्ड कोऑर्डिनेट, फिर वापस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऐसा बताया था कि नहीं? हाँ सर। ऐसा बताया था। फिर डाउनवर्ड एरो, ये 3 बनेगा, 2k बनेगा, फिर h बनेगा। नेगेटिव में क्या आएगा, 2 and k। सब ये बनेगा k माइनस 2h प्लस 1, सही है। ओके, एक्चुअली अभी mod of something is 10, then that number must be plus minus 10, no? Yes, sir. Okay, and then finally you can like replace it with x and y and you can get like, तो इसमें दो आंसर है, इसमें प्लस 10 भी है एंड इसमें ऐसा भी आएगा, प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, these two are the answers। बस एरिया फॉर्मूला यूज करना है, एच और के में रिलेशन लाना है, और कुछ करना नहीं, सोचना नहीं। ठीक है, कॉपी कर लो, देन आई डू क्वेश्चन 3 फॉर यू। अरे हाफ इंटीग्रेशन की हाइट से क्या, तो फिर 4 वेरिएबल आते हैं आंसर में। अरे एरिया का फॉर्मूला दिया है ना, वो यूज करो ना, ये अपने खुद का हीरोगिरी क्यों करते हो यार, तुम तो लोग बस पूछ फॉर्मूला रहा हूँ दिया है क्योंकि ना, मैंने वैसा किया था पहले, नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उनको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। मैं और कोई मेथड से क्यों करूंगा, बताओ मुझे। तुमको अगर there's no need to use any other method, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे करना है ये बता दिए। Sir, how can a point have two equations of trajectory? No, what it's saying is either it lies on one line or on the other line. It could lie. If it lies on either of the two lines, the area is 5. That's of the triangle. That's what we say. Yes, sir. We're not saying like it simultaneously is on both the lines. It's not like something, some electron wave or like something quantum or something. You've ऐसे थोड़ी written बोल रहे हैं। and, right? So should we replace it by or? No, no. Okay, wait. So what I meant was कि options में more than one आएगा ना, तो ये भी mark करो, ये भी mark करो, समझ रहे हो? हाँ सर, समझा। Answer is this and this. I'm not saying it is like both at the same time. What I'm trying to say is options में आएगा तो दोनों mark करना पड़ेगा because both are right. ठीक है? Yes, sir. Could you proceed to, ये हो गया तुम्हारा third question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this one is easy. C is h comma k, A is 1, 1, B is 2, 3, तो CA is equal to CB। ये तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फिर यहाँ पे, distance from this point is distance from this point।
You can square both sides. Here all the square terms disappear. Get everything on one side, becomes 2h plus 4k 13 minus 2 11 आ रहा है, ये आ रहा है. So your final answer will be ऐसे. Yes, sir. Yes. Okay. Now I'm going to give you slightly tougher questions. ठीक है? सर हाँ. सर इसको वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी कर सकते थे ना? वो ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है. हाँ सर वही पूछ रहा हूँ. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही. That is correct. सर बट सर अगर वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस b वाले से किया तो सर बाद में उसमें ना वो नहीं मिलता है, y इंटरसेप्ट मिलने में से बहुत प्रॉब्लम होता है सर. यार तुमको आधे आधे कॉन्सेप्ट्स पता है, आधे नहीं पता है. जो कंफर्म पता है वो यूज करो ना. तुमको स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कच्चा है, लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? एकदम मतलब 1+1=2 सॉल्व करने के लिए तुमको मतलब कैलकुलस यूज करोगे तो क्या क्या मतलब है? सिंपल चीजें यूज करो ना. डिस्टेंस फॉर्मूला समझ रहे हो? ओके सर. Just try to do it in whatever अभी जो दिया है उसी को यूज करो. डिस्टेंस बस खत्म. That's it. Now, I'm giving more questions. One second. Oops. Now, क्वेश्चन 4 में दिमाग लगाना है लेकिन सॉल्विंग नहीं करना है. और क्वेश्चन 5 में दिमाग कम लगाना है लेकिन सॉल्विंग ज्यादा है.
डायग्राम मुझे बनाना है नीचे, पहले ये कॉपी कर लो। ये क्वेश्चंस पहले कॉपी करो, मुझे इसका डायग्राम बनाना है 6th में, जगह नहीं है। ये कॉपी हो जाए तो बता दो। सर हो गया कॉपी। हो गया कॉपी करके? यस सर।
Okay, so 6th वाले का डायग्राम इस तरह से एक्स वाई एक्सिस है, ये है, ये बी है, ये स्लाइडिंग लाइक दिस एंड बी स्लाइडिंग डाउन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछ रहा है। हो गया, ट्राई द फर्स्ट वन। Okay,
Did you understand the figure of the fourth one? Yes. Yes. You've copied everything. See, fourth wale mein, now the equation, what you have to use is not directly given to you. Like पिछले question में ये वाले में क्या था? CA equal to CB है, ये तो given था. Kali you have to use distance formula. यहाँ पे given नहीं है, but the picture is given to you. So basically here, from the picture, from the diagram, we have to decide what to use. Do we use distance formula? Do we use slope? Do we use section formula? So basically यहाँ पे 0,4. is a line it's meeting it at end. सही है? तो क्या पूछा है इसमें? किसका लोकस पूछा है? Midpoint of AB. Midpoint. हाँ, मिड पॉइंट ऑफ AB. मतलब ये नाउ सर्कल के ओके सर्कल के मिड कॉर्ड के मिड पॉइंट की कोई प्रॉपर्टी होती है? Perpendicular drawn from center to the chord. Bisects the chord. करेक्ट. सेंटर माइनस सेंटर है ना ये. Let's call this I don't know, C for center. Let's call this P, I don't know. Okay, perpendicular to chord bisects तक ये प्रॉपर्टी होती है. ओके, सो एंगल 90 है, तो बताओ क्या यूज करेंगे? Slope. Slope. स्लोप यूज कर सकते हैं. So now here in this question we had to rely on a geometrical property of circle to actually get locus. Now that we got 90 degree, this has become like the second question or the first one. I don't know which one it is. So we can use slope of MP into slope of MC is -1. इसको लेंगे h comma k. So first, like, can we use distance formula to get the coordinates of A? Because we know like the radius is 1. This is a variable chord. If the line is meeting it here, this A will change, no? Yeah, got it. Is A fixed? It's not fixed. You cannot find A. So, okay, MP would be, slope of MP would be A -4. So this midpoint is also varying, no? Because the chord is not fixed. The pink line is not, the purple line is not fixed. You understanding? Is equal to -1. Okay. You can just cross multiply this over here. -4k plus 10. I can just simplify it. I'm just going to verify whether तुम्हारा आंसर आता ही है. So इधर लेके आओ. ये किसी का आया? ये किसी का आया आंसर? हाँ. So you get x square plus y square plus x minus 3y minus 4 is 0. ठीक है. ये कॉपी कर लेना.
सर मुझे ना एक मतलब कुछ सोच रहा था कि ये जो पी और एम का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना वो हम ढूंढ सकते हैं और उसके वाई इंटरसेप्ट में से 1 माइनस कर सकते हैं क्योंकि वो एक 1 यूनिट के डिस्टेंस से। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? सर एम और सी के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना माइनस कर सकते हैं। पी और एम का इक्वेशन कैसे निकालोगे बताओ मुझे। सर वो तो स्लोप से ना। अच्छा कैसे? ओके सर समझ गया क्या करना है। And just because radius is 1, how does that mean कि y intercept 1 से कम होगा? Sir, हाँ, I actually thought that because point P, it lies on the y-axis, and as the radius is 1, one of like the y-axis will be a tangent to the the circle. why? So because -1, से रेडियस 1 लेंगे तो 1 circumference का एक पॉइंट will be 0, -1, right? Okay, ठीक है, fine, granted. Then Yeah. No, sir, actually, I kind of assume that all the midpoints will be on a straight line. no, But they're not doing. Actually, I'll tell you what. Okay, no, this is not part of the question. मैंने ये कर दिया तुम्हारे लिए. Answer ये है. Now let me just show you like a. This is not required to solve this. Answer question is over here. What is the locus of M? It's not really a straight line, it's a circle. And I'll show you how. See, just use your imagination. This is not how you solve questions, by the way. Don't solve questions like this, please. This is just for ठीक है? Just showing you. okay, sir. ये देखो. What am I doing here? तुम वेरिएबल कॉर्ड्स बनाओगे तो अलग अलग ए बी मिलेगा ना. Yes, sir. इनके मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करोगे यू गेट एन आर्क. समझ रहे हो? Oh, It's okay, not sir. straight line. Yeah. Okay. ठीक है? Got The path okay. of the midpoint is an arc. Yeah. Okay, sir. Got it. No Thank need you. to copy this. This is just for you. Notes में है, but official notes में मत करो copy. So this is not part of the question. Anyways, the second question इसमें दिमाग लगाना कम है लेकिन सॉल्विंग ज्यादा है. मतलब कचरा अलजेब्रा ज्यादा है, समझ लो. Yeah, I'm waiting. I'm just waiting for it.
How can x square plus y square be -1? No, no. I'm solving the fifth one now. Let's just use distance formula. सबको ये इक्वेशन आ रहा है ना? इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑप्शंस में ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होगा। क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बताओ? Or take one. Taking square. सर एक वैल्यू को Square it on both sides. सर एक वैल्यू को राइट और हैंड एक रूट को वो साइड भेज के स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। I think many people took it as square here. That's how you're getting distance formula में square root है। सर स्क्वायर करेंगे तो वो 2ab भी आएगा ना? हाँ, ये 2ab आएगा। इसीलिए क्या करो, इसको इधर ले जाके स्क्वायर करो। Now you इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Okay. Let's just simplify this. Now I need to square this again because ये root अभी भी है। By the way, you can cut this h square. ठीक है। You can divide by 4. Now you can square both sides. Again, we are squaring.
So this is 9h square okay, now this 36h gets cut. 5h square plus 9k square is 45. This is the answer. समझ रहे हो? लोगों का पता नहीं क्या क्या आया है, किसी का एक का राइट आया है. 5h square by 9. Okay, I think one person has got it right. 5h square by 9, I think it comes out to be the same. Is 9k square is minus 45. Okay. One person has got this, but in a different format. That's okay. ठीक है. ये कॉपी करना है ये वाला. सर यहाँ पे अगर हम पहले ही स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो तो स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट आएगा फिर बड़ा वाला 4 डिग्री. हाँ. There is no figure. एक मिनट ये पहले लोगों को कॉपी करने दो, then I will. ये हो गया तो बता दो. सब हो गया. ये कर लो. The next question is basically like today's finale. मतलब जो कोई अगर उस कर लेगा तो मतलब मैं मान जाऊंगा. उसको लोकस पूरा समझ में आ गया.
ये हो गया तो बता दो। Yeah, this one. Yeah, correct. Okay, Animesh, I think you got the right answer. Yes, that's right. मतलब तुमको समझ में आ गया है। Yeah, I think, yeah, Mihir, I think you also got the right answer. Okay, just wait a couple of more minutes. अच्छा, जिसका solve हो गया ये, they can leave. जिनका मतलब आंसर आ गया है, x square plus y square is a square by 4, या 4x square plus 4y square is equal to a square. I think couple of people, because this is the last question I'm doing for today. Just waiting 2 minutes, then I'll do this question and then we are packing up.
x square plus y square equal to a square नहीं आएगा. Okay, I'm going to copy this diagram. I'm going to copy paste this diagram here. Okay, see. रॉड ऐसे स्लाइड कर रहा है, मतलब ये ऐसे ये गिर रहा है ना ऐसे इस तरह से, ठीक है. तो A somewhere on the x axis, B somewhere on the y axis. Now ये अल्फा कॉमा 0 लेंगे, इसको 0 कॉमा बीटा लेंगे ऐसे, मतलब बिकॉज हमें पता नहीं ना क्या कोऑर्डिनेट है, ये चेंज होता रहेगा, B भी चेंज होगा. नाउ मिड पॉइंट इज h कॉमा q. ना इसमें दो चीजें हमें दे रखी है, एक ये बोला है ये मिड पॉइंट है, दूसरा की रॉड का लेंथ दे रखा है. सो अगर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? 0 plus alpha upon 2 beta plus 0 upon 2. हाँ तो कितना है ये? अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, सही है. तो अल्फा 2h हो गया, बीटा 2k हो गया, सही है. हाँ सर. के बाद रॉड की लेंथ दे रखी है कितनी? a. मतलब डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा, सही है. ऐसा सही लिखा मैंने, इज इक्वल टू a, करेक्ट. यस सर. सो दिस इज, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ना अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है बिकॉज अननोन नहीं आना चाहिए, मैंने बोला था अननोन नहीं आना चाहिए ना. अल्फा बीटा वेरिएबल, सो सब्स्टिट्यूट करो. 4h square plus, हाँ बस आ गया. 4h स्क्वायर क्या आंसर है? मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज a स्क्वायर. इसको ऐसा भी लिख सकते हो, किसी को लिखना हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. समझ में आ रहा है? yes. ठीक है. So what is the level of this question? मतलब did you find it hard or easy? वो सही से easy. हाँ सर, easy. This one you would say is medium level. Okay. सर आज के जितने भी सम आपने दिए थे वो मेंस लेवल के थे ना, कोई एडवांस लेवल का नहीं दिया आज. देखो एक चीज क्या है कि हमने अभी तक कितने कॉन्सेप्ट्स किए हैं स्ट्रेट लाइन में? सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेंटर. Now based on these concepts यही क्वेश्चन बनेंगे. As we learn more concepts in straight line, in circle, in अभी अगले और चैप्टर आएंगे तो more concepts can be used. So locus gets tougher and tougher as more and more theorems and concepts you learn. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Based on these distance formula, section formula, तो questions तो ऐसे ही बनेंगे ना, distance लगाओ, ठीक है. Yes. Do you want a difficult, challenging question as a homework? yes sir. ये जे एडवांस में आया और ये काफी टफ था. ओके ये चलो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा किसने किया है नहीं किया है. दिस विल इन्वॉल्व लाइक, कौन सा है क्या हुआ सर? ईयर कौन सा है? ईयर मतलब 1-2 साल पहले का. सर ये ट्रू है क्या कि जो भी 2000 से पहले पेपर होते थे वो इजी होते थे जेईई एडवांस के? नहीं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, मे बी फ्रॉम टुडे स्टैंडर्ड आल्सो दे डिफिकल्ट. सो इट्स नॉट दैट. आई वुड से 1980s वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है सारे. 1990s वाले कुछ क्वेश्चंस अभी भी आज के स्टैंडर्ड के और 2000s के भी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है. ओके नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, तुमने 10th में सर्कल किया है ना? सर्कल मतलब थ्योरम्स ऑफ सर्कल, ज्योमेट्री वाला पार्ट. Yes. तो स्टार्टिंग में जब तुमको सर्कल जब सिखाया था तो काफी टफ लगता था ना कि मतलब एंगल क्या है, कौन सा थ्योरम लगाए, क्या लगाए, समझ रहे हो? वो
Yes, sir. You were asked to find the unknown angles and all those things. Now, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगेगा और उसमें तुम्हारा 10वीं का एंगल भी लगेगा, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी. लेट्स जस्ट टेक देम टू बी अपना स्टैंडर्ड पॉइंट्स. मतलब ये A11 है, B3,4. ओके, अब क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम नहीं बना रहा उससे वाला. A circle S1 touches AB at A and circle S2, मतलब is another circle, touches AB at B. ठीक है? These are both variable circles. If the circles S1 and S2 touch each other at P, find locus of P. क्वेश्चन समझ में है? यस सर. एक सर्कल ऐसा है और एक ऐसा सर्कल है, और वो AB को A पे टच कर रहा है, AB को B पे टच कर रहा है, वो आपस में टच कर रहे हैं. तो कहाँ टच कर रहे हैं उसका लोकस निकालना है, और वो चेंज होगा क्योंकि सर्कल की साइज तो दी नहीं रखी है. ठीक है सर, वो अलोंग द लाइन भी हो सकते हैं ना? नहीं, अलोंग द लाइन कैसे होंगे ना? इट इज मतलब सर इनसाइड सर्कल, दोनों इनसाइड सर्कल. व्हाट डू यू मीन इनसाइड सर्कल? सर ए और बी के बीच में 2 सर्कल नहीं होंगे ना, टेंजेंट है ना. एक टचेस लिखा है ना. टेंजेंट है ना, बोले ऐसे थोड़ी होगा. ये टच कहाँ कर रहा है? ओके सर. ठीक है. ओके, ये you can just take a screenshot of this and do it at home. I'll send the recording and everything. ठीक है, चलो. सर एक सेकंड, क्वेश्चन कॉपी में. हाँ, सर आप फर्स्ट पीडीएफ खोल सकते हो क्या? फर्स्ट पीडीएफ भेजा नहीं मैंने पिछली बार का. नहीं सर, पहला सबसे स्टार्टिंग का सर, उसमें मेरे को एक डाउट है. मैंने भेजा नहीं ग्रुप पे पहले. नहीं सर, भेजा है. एक मिनट, तो उसमें क्या करूं मैं? फिर से भेजूं? Is that what you're saying? नहीं सर, मेरे को उसमें एक क्वेश्चन में डाउट है सर, मैं बोलूँ वो? अच्छा, सर you are saying. a rod एक of मिनट, एक length काम करो. Do one thing. Next lecture में first thing will you bring up that question? I yes have sir. another class immediately in 10 minutes now. 15 minutes. Yes. So for a second, can you show the question side? Like not the question, the solution. ये हाँ, So question 5. बड़ा है ये वाला. ऊपर या नीचे? हाँ सर, वैसे मैं थोड़ा फिर नीचे. पीडीएफ भेज ही रहा हूँ ना, मैं तुमको पीडीएफ भेजता हूँ. You can copy from there. हो गया सर, थैंक यू. बाय सर. हाँ, do one thing. Next time तुम अपना डाउट लेके आ जाओ. First thing you remind me. ठीक है? Yes sir. चलो. सर आप डाउट्स कब डिस्कस करने वाले हो? Coming week में we have a class. Our coming week will be doubt class entirely. सर आपने होमवर्क दिया है क्या कुछ? वो पहले दिया था ना ग्रुप पे, वो करना है. अभी लोकस का मैं जो दूंगा वो ये वीक में नहीं करना है, वो अगले हफ्ते करना है. लेकिन जो पहले का होमवर्क है वो अभी डिस्कस करूंगा कमिंग क्लास में. So we discussed that yesterday's doubt class. Sir, but What doubt class? Like yesterday we had a doubt class for maths. We discussed some of the questions there. मेरे साथ? No, like some others or RKM सर के साथ. अच्छा, वो डाउट डिस्कस हो गए तुम्हारे?
सर Sir, नहीं still मतलब more are left, sir. So हाँ Yes, सर sir. Sir, We it will discussed be only like some better of if them, you no? did it as well. मतलब sir, we would be comfortable with you. नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सर ने क्लास में करा दिया है डाउट्स No, not all. Like only Not like all. 1-2 questions. बाकी डाउट क्लास में क्या किए? We were discussing other chapter questions. अच्छा ओके ठीक, ओके ओनली ठीक है, देन we'll discuss it coming क्लास में। और सर इसका मैं जो तो होमवर्क भेजूंगा मॉडल लोकस का, डाउनलोड वो अगले हफ्ते के लिए रहेगा, ठीक है? हाँ, व्हाट डू यू सेइंग? सर क्योंकि yesterday तक ऐसे खत्म भी नहीं हुआ था वो पूरा होमवर्क, दैट्स व्हाई could you also discuss it? सो अभी ये वीक में अपना जो पहला क्लास आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी रहेगा, उसमें हम करेंगे डिस्कस। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड विद Yeah. ऑल योर डाउट्स। चलो।